Good afternoon, students. Today I am going to explain the fourth chapter of civics of class 6 social studies, and name of this chapter is key elements of democratic government. Elements of democratic government means we'll study the main features of democratic government. As I told you in the previous chapter that there are two types of governments, democratic governments and monarchy, and in brief I explain about these two governments, democracy and monarchy. In this chapter in detail we are going to study about the main features of democratic government. So first of all we'll see that what are the contents which we have to study in this chapter, means what are the topics which we are going to cover in this chapter. Firstly, key elements of democratic government, means main features of democratic government: participation, resolution of conflicts, equality and justice, then apartheid system, then protest by Hector and Law, and lastly about Nelson Mandela, a great leader of South Africa. About all these things we have to study in this chapter. So first of all I am starting with की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स के मेन फीचर्स क्या होते हैं, what are the main characteristics of democratic government. So there are mainly three features of democratic government, or there are three key elements of democratic government. That there is participation of public in government. democratic governments का पहला फीचर ये होता है कि participation means public participates in government. Second feature, resolution or solution of conflicts. If between different groups of a country there are some conflicts, then these conflicts are resolved by government, or solution of these conflicts are given by government. It is the responsibility of democratic government. And last feature, equality and justice. It is the responsibility of government to bring equality, मतलब समानता, justice मतलब न्याय, लोगों में असमानता को दूर करके समानता लाना और उनको justice provide कराना. This is the responsibility of a democratic government. So these are the main features. So first of all I am going to start with the first feature, that is participation. What is the meaning of participation? In democracy people elect the representatives. As we know that in democracy, in previous chapter also I told you that in democratic governments are elected after every 5 years. Elections are held, and in these elections public elect their representatives, and these representatives form the government, and they take the decisions on behalf of public for the betterment of the country. So second point is the representatives take decisions on behalf of people, means people elect through elections their representatives who form the government, and these representatives take decisions on behalf of public for the betterment of society. Next, पार्टिसिपेशन का मतलब क्या होता है? ऑल गवर्नमेंट्स आर इलेक्टेड फॉर अ फिक्स्ड पीरियड. मतलब जो भी गवर्नमेंट्स होती है उनका कोई एक इनफाइनाइट टेन्योर नहीं होता, एक फाइनाइट या फिक्स टेन्योर होता है. और वो फिक्स टेन्योर क्या होता है? इन इंडिया दिस पीरियड इज़ 5 years. मीन्स इन इंडिया गवर्नमेंट्स आर इलेक्टेड फॉर अ फिक्स टाइम पीरियड ऑफ 5 years. मीन्स आफ्टर एवरी 5 years न्यू गवर्नमेंट इज़ इलेक्टेड बाई पब्लिक थ्रू इलेक्शंस. पार्टिसिपेशन का मतलब तो ये हो गया. देर आर मतलब पार्टिसिपेशन का पहला मतलब क्या हो गया? पब्लिक पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट इनडायरेक्टली विद थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स हु आर इलेक्टेड बाय पीपल इन इलेक्शंस. मतलब गवर्नमेंट में पब्लिक डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करती है, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करके भेजती है, और वो गवर्नमेंट रन करते हैं, फॉर्म करते हैं और पब्लिक को रिप्रेजेंट करते हैं. बट देर आर अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक इन गवर्नमेंट. पब्लिक गवर्नमेंट में दूसरे तरीक़ों से भी पार्टिसिपेट करती है. पहला, बाय क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट when it is required. मीन्स डेमोक्रेसी की खासियत ये होती है कि पब्लिक कैन क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, बिकॉज गवर्नमेंट हैज़ बिन इलेक्टेड बाई पब्लिक. पब्लिक ने गवर्नमेंट को चुना है, इसीलिए पब्लिक गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकती है. इफ़ public thinks that government is not taking appropriate decisions, then public can criticize the government also. तो एक another way of participating public in government हो गया. Next, टेक आउट रैलीज एंड ऑर्गेनाइज सिग्नेचर कैंपेन. धरना, गवर्नमेंट के अगेंस्ट आप रैली कर सकते हैं, सिग्नेचर कैंपेन चला सकते हैं या धरना दे सकते हैं. ये सारे काम भी पब्लिक गवर्नमेंट के अगेंस्ट कर सकती है यदि गवर्नमेंट को, पब्लिक को लगता है कि गवर्नमेंट इज़ नॉट वर्किंग सेटिस्फैक्टरीली. सो अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन गवर्नमेंट दीज आर. सेकेंड फीचर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का होता है रेजोल्यूशन और सोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स. यदि
एक कंट्री में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है डिफरेंट ग्रुप्स में, तो उनको सॉल्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की होती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन मे अराइज इन योर माइंड दैट वाई डू कॉन्फ्लिक्ट्स अकर, कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों होते हैं। इट अकर्स, कॉन्फ्लिक्ट्स इस तब होते हैं व्हेन पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर, रिलीजन्स, रिलीजियस, रीजनल, इकोनॉमिक बैकग्राउंड डू नॉट गेट विद वन अनदर। जब अलग अलग कल्चर के लोग, अलग अलग रिलीजन के लोग, अलग अलग रीजन, अलग अलग एरियाज़ के लोग, अलग अलग इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लोग एक दूसरे के साथ मिलते नहीं हैं, और व्हेन सम ऑफ देम फील दैट दे आर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड। कॉन्फ्लिक्ट तब भी होता है जब सोसाइटी के कुछ लोगों को ये लगता है कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है और कुछ लोगों का फेवर किया जा रहा है, तो दोनों ग्रुप्स में स्टार्ट हो जाता है कॉन्फ्लिक्ट। हु डज रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स, कौन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करता है। गवर्नमेंट रिजॉल्व्स द कॉन्फ्लिक्ट विद द हेल्प ऑफ पुलिस सिस्टम एंड जुडिशियल सिस्टम। कंट्री में पुलिस है और कोर्ट है, तो कोर्ट एंड पुलिस सिस्टम, दीज टू आर द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। तो जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो पुलिस इसकी रिपोर्ट लिखती है और इसको प्रेजेंट करती है कोर्ट्स में, और कोर्ट्स डिसीजन देते हैं इस तरह से कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो रिजॉल्व हो जाए। तो इस तरह से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का एक की फीचर होता है कि इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट्स टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ कॉन्फ्लिक्ट का। हमारे कंट्री में 2 स्टेट गवर्नमेंट्स में कॉन्फ्लिक्ट है। किस बेसिस पे? कावेरी वाटर डिस्प्यूट है। कावेरी एक रिवर है साउथ इंडिया में जो फ्लो करती है, उस रिवर के वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन में 2 स्टेट्स में कॉन्फ्लिक्ट है। क्या है कॉन्फ्लिक्ट? देयर इज अ डिस्प्यूट ओवर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑफ कावेरी रिवर बिटवीन कर्नाटका एंड तमिलनाडु। एक रिवर है कावेरी जो साउथ इंडिया में 2 स्टेट से होकर फ्लो करती है, कर्नाटका से और तमिलनाडु से। अब कर्नाटका ने क्या करा है, कर्नाटका हैड कंस्ट्रक्टेड कृष्णा सागर डैम। कर्नाटका ने इस कावेरी रिवर पे कृष्ण सागर डैम बना दिया है, और तमिलनाडु हैज़ कंस्ट्रक्टेड मेट्यूर डैम ऑन दिस रिवर। और तमिलनाडु गवर्नमेंट ने मेट्यूर डैम बना दिया है। अब क्या होता है, डाउन स्ट्रीम डैम ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु नीचे वाले एरिया में पड़ता है, कैन गेट वाटर ओनली इफ अप स्ट्रीम डैम ऑफ कर्नाटका रिलीजेज इट। जो कर्नाटका वाला डैम है वो ऊंचाई पे स्थित है, मतलब ये कृष्ण सागर डैम ऊंचाई पे है और तमिलनाडु का मेट्यूर डैम नीचे है। तो यदि कृष्ण सागर डैम क्या होता है कि अपने जो डोर्स क्लोज कर देता है, तो पानी मेट्यूर डैम में या तमिलनाडु में जो कावेरी रिवर है उसमें पहुंच नहीं पाता है, तो वहाँ के लोगों को इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती हैं। इसी कारण दोनों स्टेट्स में वाटर को लेकर डिस्प्यूट हो जाता है। सो बोथ स्टेट्स कैन नॉट गेट एज मच वाटर एज दे नीड एंड दिस लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट। और इसीलिए दोनों में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जब भी कर्नाटका को पानी की ज़रूरत होती है तो कृष्ण सागर डैम के जो डोर्स हैं उसको क्लोज़ कर देते हैं, डोर्स क्लोज़ कर देते हैं, तो कृष्ण सागर डैम ऊपर है, तो नीचे जो डैम है मेट्यूर डैम है वहाँ पे पानी नहीं पहुँचता है और इरिगेशन की प्रॉब्लम तमिलनाडु में होने लगती है। इस कारण दोनों स्टेट्स में डिस्प्यूट है। ये कावेरी वाटर डिस्प्यूट बहुत फेमस है हमारे कंट्री में, बहुत दिनों से चल रहा है। लास्ट फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज इक्वालिटी एंड जस्टिस। इक्वालिटी एंड जस्टिस आर इनसेपरेबल। मतलब इक्वालिटी तभी आएगी जब जस्टिस हो, या जस्टिस तभी होगा जब इक्वालिटी। दोनों को अलग नहीं कर सकते, दोनों एक ही साथ होंगे। तो जस्टिस लाने के लिए इक्वालिटी लाना पड़ेगा, इक्वालिटी लाने के लिए जस्टिस लाना पड़ेगा। इफ़ देयर इज़ इक्वालिटी देयर विल बी जस्टिस, इफ़ देयर इज़ जस्टिस देयर विल बी इक्वालिटी। तो दोनों इनसेपरेबल हैं। तो इसको लाने के लिए गवर्नमेंट्स ने मेन कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस। अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अबॉलिश्ड। पहले हमारे कंट्री में चैप्टर 2 में मैंने आपको बताया था, इन आवर कंट्री देयर वाज अनटचेबिलिटी बिफोर इंडिपेंडेंस। पर्टिकुलर कास्ट्स ऑफ अ कंट्री वेयर कंसिडर्ड एज अनटचेबल्स एंड अदर कास्ट ऑफ हायर क्लासेस वेयर not allowing these lower castes to come the temples or to take water from their wells because they considered these as untouchables. तो अपर क्लास के जो लोग थे लोअर कास्ट के लोगों को अनटचेबल मानते थे, तो इसीलिए टेम्पल में नहीं आने देते थे या वेल से पानी नहीं लेने देते थे जो कॉमन वेल होता था। तो अनटचेबिलिटी को आफ्टर इंडिपेंडेंस इट हैज़ बिन अबॉलिश्ड एंड इफ समवन इज डूइंग द बिहेवियर ऑफ अनटचेबिलिटी विल बी पनिश्ड बाय कोर्ट इन आवर कंट्री। सेकेंड, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट। हमारे कंट्री में अप्रैल 2010 में राइट टू एजुकेशन एक्ट इम्प्लीमेंट कर दिया गया। नाउ इट हैज़ बीन मेड फंडामेंटल राइट for each and every child to get free and compulsory education. Which child? Those child who are belonging to age group 6 to 14 years. ऐसे सारे बच्चे जो 6 से 14 ईयर्स एज ग्रुप के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए एजुकेशन को फंडामेंटल राइट कर दिया गया है। उनको एजुकेशन मिलना ही मिलना है। इक्वलिटी लाने के लिए एवरीवन
हैज़ टू बी एजुकेटेड, तो सबको एजुकेटेड बनाना है, इसीलिए राइट टू एजुकेशन लाया गया है। अब सबका फंडामेंटल राइट हो गया है एजुकेशन प्राप्त करना। स्टेप्स टू रिमूव द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, मेनी स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रिड्यूस द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, बिकॉज इन आवर कंट्री देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन आवर सोसाइटी ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन इन फेवर ऑफ मेन। मेन लोगों को ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, वीमेन को कम, तो इस तरह से हमारी कंट्री का हमारे सोसाइटी का वेलफेयर कम रहता है। इसको दूर करने के लिए जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को मेनी स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय government, and jobs are opened for all. Before independence, for lower caste jobs were not allowed, means jobs were not open for lower caste, but after independence through constitution various rules and regulations have been implemented in our country, and with the help of, because of these rules and regulations, now jobs are open for all. Individual belonging to any caste can apply for any job, there is no discrimination. Now we'll study about a particular system that is known as apartheid system. We have to study about apartheid system. apartheid system का मतलब होता है रंग भेद, ऐसा सिस्टम, ऐसा लॉ जिसमें किसी कंट्री में स्किन के कलर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता हो, वाइट लोगों को ज़्यादा फैसिलिटीज़ और ब्लैक लोगों को कम फैसिलिटी दी जाती है, तो इस तरह के लॉ को, सिस्टम को बोला जाता है अपार्थाइड सिस्टम। बिफोर 1994 इन साउथ अफ्रीका देयर वाज अपार्थाइड सिस्टम। साउथ अफ्रीका इज़ वन ऑफ द कंट्रीज़ ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। उस कॉन्टिनेंट में एक कंट्री है साउथ अफ्रीका, वहाँ बिफोर 1991 अपार्थाइड सिस्टम चलता था। अपार्थाइड मीन्स सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर। स्किन कलर के बेसिस पे लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है, लोगों को अलग अलग करके रखा जाता है। इन साउथ अफ्रीका पीपल वेयर डिवाइडेड इनटू वाइट्स, ब्लैक्स, इंडियन एंड कलर्ड रेसेस। लोगों को गोरे में, वाइट मतलब गोरे, ब्लैक मतलब काले, इंडियंस एंड अदर कलर्ड रेसेस में लोगों को डिवाइड किया गया था। हॉस्पिटल्स, एम्बुलेंसेस, ट्रेन्स, बस स्टॉप्स वेयर सेपरेट फॉर वाइट्स एंड नॉन वाइट्स। गोरे लोगों के लिए और जो लोग गोरे नहीं थे, गोरे लोगों के लिए हॉस्पिटल, एम्बुलेंस, ट्रेन्स, बस स्टॉप अलग थे, और जो गोरे नहीं थे उनके लिए अलग थे। नॉन वाइट्स वे आर नॉट अलाउड टू वोट। इसके यही नहीं, जो लोग गोरे नहीं थे, नॉन वाइट्स जो थे, उनको वोट देने का भी कंट्री में कोई राइट नहीं था। द बेस्ट लैंड इन कंट्री वॉज रिजर्व फॉर द वाइट पीपल। और कंट्री को जो सबसे अच्छी क्वालिटी की लैंड थी वो किसके लिए रिजर्व थी, वो किसको दी गई थी, वाइट लोगों को। मतलब ब्लैक लोगों को फैसिलिटीज़ कम थी, वाइट लोगों को ज़्यादा फैसिलिटी थी, डिस्क्रिमिनेशन होता था ब्लैक लोगों के साथ। इसके लिए आवाज़ उठाई थी एक वहाँ के स्टूडेंट ने, जिसका नाम था हेक्टर एंड लॉ। उसी को हम पढ़ेंगे, प्रोटेस्ट बाय हेक्टर एंड लॉ। वन ब्लैक टाउनशिप वाज साउथ वेस्टर्न टाउनशिप सोवेटो। साउथ अफ्रीका में एक टाउन था जिसका नाम था सोवेटो, यहाँ पे ब्लैक लोग रहते थे, यहीं पे रहता था हेक्टर एंड लॉ। तो हुआ क्या, हेक्टर एंड हिज क्लासमेट्स ज्वाइंड द प्रोटेस्ट अगेंस्ट लर्निंग ऑफ अफ्रीकान्स लैंग्वेज इन स्कूल। साउथ अफ्रीका में गोरे लोगों की भाषा स्कूल्स में पढ़ाई जाती थी सबको, जिसका नाम था अफ्रीकान्स लैंग्वेज, बट दे वांटेड टू लर्न देयर ओन लैंग्वेज जुलू। लेकिन काले लोगों की, जो ब्लैक लोगों की लैंग्वेज थी जुलू थी, वो जुलू लैंग्वेज स्टडी करना चाहते थे। इसके लिए इन लोगों ने आंदोलन किया, प्रोटेस्ट किया। साउथ अफ्रीकन पुलिस बीट अप द प्रोटेस्टर्स मर्सिलेसली एंड शॉट एट द क्राउड। पुलिस ने इन लोगों की काफ़ी पिटाई करी और भीड़ पर गोली भी चला दी। वन ऑफ दियर बुलेट्स किल्ड हेक्टर ऑन 30 अप्रैल 1976। इनमें से एक गोली जो पुलिस चला रही थी जाके हेक्टर को लगी ऑन 30 अप्रैल 1976 को, और इनकी डेथ हो गई हेक्टर की। उसके बाद ये जो प्रोटेस्ट था इसको आगे किसने लीड किया, द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, वहाँ की एक पार्टी थी, विच वाज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लेड द स्ट्रगल अगेंस्ट द अपार्थाइड। अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट लड़ना स्टार्ट किया था हेक्टर एंड लॉ ने, और बाद में इसको कंटिन्यू किया अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने। और अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को सबसे इंपॉर्टेंट लीडर बाद में चल के हुए, द मोस्ट एंड वेल नोन लीडर नेल्सन मंडेला। और जब ये हुए तो इन्होंने आंदोलन को और तेज कर दिया, फॉट द अपार्थाइड सिस्टम फॉर सेवरल ईयर। कई सालों तक अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट ये लड़ाई करते रहे नेल्सन मंडेला, इसलिए इनको साउथ अफ्रीका का महात्मा गांधी बोला जाता था। जैसे हमारे कंट्री में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फ्रीडम स्ट्रगल करा महात्मा गांधी ने, वैसे ही अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट स्ट्रगल करा साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला ने। और इनका जो भी कंट्रीब्यूशन था, बिकॉज ऑफ दैट फाइनली दे सक्सीडेड, एंड इन ईयर 1994 साउथ अफ्रीका बिकेम डेमोक्रेटिक कंट्री। और आगे चल के 1994 में साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेसी आ गई, अपार्थाइड सिस्टम हटा दिया गया, इन विच पीपल ऑफ ऑल रेसेस वी आर कंसिडर्ड इक्वल। एज वी नो दैट इन डेमोक्रेसी ऑल पीपल आर कंसिडर्ड एज इक्वल। इन नेल्सन मंडेला की एक पिक्चर यहाँ पे मैंने दिया है आपको, आप देख सकते हैं, पहचान सकते हैं इनको। साउथ अफ्रीका बिकेम अ डेमोक्रेटिक कंट्री
डेमोक्रेटिक कंट्री इन 1994 इन विच पीपल ऑफ ऑल रेसेस वेयर कंसिडर्ड इक्वल, वही जो मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताई थी कि 1994 में साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेसी आ गई, डेमोक्रेटिक सिस्टम अडॉप्ट कर लिया गया और अभी वहाँ पे ऑल रेसेस वेदर दीज आर वाइट्स और ब्लैक्स आर कंसिडर्ड एज इक्वल. So this is all about this chapter. Thank you.